श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियाज परफ्यूमर्स रिक्रिएट द स्मेल ऑफ रेन ऑन अर्थ स्टिल स्टैंडिंग। सो स्टार्ट करते हैं। Fresh roses are the main ingredient for this ancient way of making perfume. The tradition is thousands of years old, and this small city in India is one of the only places that still makes it this way. One batch can take weeks or even months to prepare. The result is 100% pure perfume, also called attar, the Arabic word for fragrance. But what makes the attar so special is also what is leading to its demise. The time-consuming process is hard to sustain. We visited India's perfume capital, Kannauj, to see how this craft is still standing. Workers gather roses in these fields near Kannauj and deliver them to distilleries while they're still fresh. This one is over 100 years old. It's owned by NL Ramnarayan Perfumers. There is no electricity and no industrial machinery here. Workers have already prepped these copper containers or degs, filling them with just the right amount of water, about 80 kilos. सबसे मुश्किल तो यही चीज़ है कि हमको कितना पानी लेना है। सबसे मुश्किल यही चीज़ होती है, हर आदमी अंदाज नहीं लगा पाता है। Once the flowers arrive, they are carefully weighed. It is an essential part of the process, as getting an accurate ratio is key. हमें लगभग 5 वर्ष लगे इस काम को सीखने के लिए। The roses are evenly spread out, and it takes 2 men to carry and pour them into the degs. कमाल है यार, इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। As the petals begin to seep in the water, a craftsman seals the container rim with a mixture of clay and cotton. बिल्कुल सील। They then light firewood inside an earthen oven called a bhatti, and the alchemy begins. The heat boils the water and flowers until they emit steam. It condenses as it travels through this hollow bamboo pipe or changa. That connects to the bhabka, a smaller container filled with sandalwood oil that forms the base of attar. ये लोग भपके जोड़ रहे हैं और ये जैसे पट्टी ढीली जाती है, इसे टाइट बनी रहे, तो ये भपके जो है मतलब पानी जो है बखा ना ले। This is where every last drop of fragrant water will gather over 6 hours. In the meantime, workers constantly check the temperatures of the different vessels, using their hands and years of experience instead of thermometers. They monitor the fire to make sure the degs are warm enough to create steam, but not too much, otherwise it can destroy the scent. They also have to make sure the bhabka stays cool enough to turn the steam back into liquid. This is a job which requires a lot of patience, it requires a lot of time and effort. The input has to be good to get great outcomes. So every stage of our process has to be given a lot of focus and to be done with a lot of concentration. And any slip off can, have negative result. And the result is the all-natural attar, free from any alcohol or artificial chemicals, with a scent that can linger for days. Here, they make over 15 different kinds of oils. But one of their most prized is mitti attar, literally meaning earth perfume. Let's say there is rain on dry earth, and you will smell the sweet, soothing smell that one gets. So that's the smell that you can expect from attar. To recreate the smell of earth, they use old clay pots that were used for spices or tea. They crush the pots and add them to the water just as they did with the roses. But while rose attar is made in a day, others can take weeks or even months to produce. They are distilled and redistilled till the smell is potent enough. The last step is the bottling process.
It's also old school. Using a funnel and a bucket, every tiny bottle is filled by hand. Expensive attars can sell for 10,000 Indian rupees or $135 US. खूबसूरत पैकिंग के साथ। And that's the price for just 2 teaspoons of it. The raw materials are costly, and it takes a lot to make just a little amount of perfume. ये इतने महंगे इसलिए बिकते हैं कि जैसे आप संदल चंदन का तेल ओनली 1 लाख रुपए से नीचे नहीं बिकता, ऊपर ही बिकता है। तो हम इस पर फूल लगाएंगे 50 रुपये किलो या 200-250 रुपये किलो वाला, तो ऑटोमेटिक उसका रेंज बढ़ जाएगा। Kannauj has been known to produce attar for at least 400 years. As a matter of fact, Kannauj has got the geographical indication for an attar. So technically, an attar can only be from Kannauj. But the method of steam distilling is said to have originated in ancient Persia and the Middle East, thousands of years ago. In India, it was popularized by Mughal kings during the 17th century. But these days, young brand-conscious Indians mostly use Western perfumes. As a result, in the last 20 years, 80% of India's traditional distilleries have closed down, and the people of Kannauj have felt the decline. So the whole town is involved in the business of perfume making. I would say about 80% to 85% of the people living in the industry, in the town, are associated to the perfume industry in one way or the other. A lot of people say that it's losing its sheen and stuff like that, but we personally don't feel that way. Every day we strive to innovate and find a new application for our oils. So we've seen growth, no doubt. Muslims all across South Asia have used attar for centuries. It's believed to be one of Prophet Muhammad's most prized possessions. तो हमारे दादा, हमारे डैडी सब बहुत शुरू से लगाते हुए आ रहे हैं। And outside of India, these chemical-free attars are popular in the Middle East. European fragrance houses have also been importing attar to use it as an ingredient in their modern perfumes, breathing new life into an ancient industry. We are very proud of our lineage, but at the same time, it's a lot of responsibility as well. When you have to maintain and sustain certain standards, then that becomes difficult. It makes us proud to carry forward a legacy of 5 generations. After all, recreating the smell of rain on earth is no small legacy. जी जनाब, जी जनाब। अच्छा, अक्सर मेरे जहन में ख्याल आता था कि यार ये बनता कैसे होगा। इंडिया में नहीं, वैसे इतर बनते कैसे होगा। अच्छा, मैंने ज़्यादा जो नाम सुना था ना, मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी ये सोचा था कि होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि इतने अच्छे पैमाने पे हो रहा है। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार था, मैं कहता हूँ पहली बात तो ये है कि हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही अमेजिंग, और मैं तो बहुत बड़ी मालूमात में इजाफ़ा हुआ कि इस तरह से बनता है। पुराने लोग हैं और किस तरह से वो देगों में बन रहा है, नीचे भट्टियाँ चल रही हैं, फिर पानी और फ्लावर्स की मात्रा असल मकसद है। मैंने सुना था हर काम में मेहनत है, लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें बड़ी मेहनत है। अच्छा, पुराने देखिए पानी का तनासुब करना, फिर उस तरीके से स्टीम लगना, कह रहे हैं कि बहुत टाइम टेकिंग काम है ये, मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। और उसमें फिर उसकी जो भाप आती है उससे फिर वो अत्तर बन रहा है, फिर उसमें ऑयल मिलता होगा, फिर छोटी छोटी बॉटल्स में। हमारे यहाँ पे एक अत्तर की बोतल है, नॉर्मल लोकल ही होगा, मतलब लोकल का मतलब ये है कि आम तरीके से बनाया होगा, पता नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये जो अत्तर बनता हुआ हमने देखा, ये नेचुरल चीज़ों से देखा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आर्टिफिशियल खुशबुएँ हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि अब चीज़ों को मिला के खुशबुएँ बना ली होंगी लोगों ने। अब इतनी मेहनत पे लोग नहीं जाते हैं, और ना ही मतलब मैंने इस तरह देखा है कि यार इस तरह बनते होंगे। अच्छा, ये वीडियो में बताया गया कि बहुत प्योर है, ये तो प्योर है, बिल्कुल प्योर है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पाकिस्तान में कहीं बन रहा है तो ऐसे बनता होगा। बहुत कम, शायद बहुत कम चांसेस हैं कि किसी शहर में बन भी रहा हो। अच्छा, जब से जदीद तरीके आए हैं तो ये ख़त्म हो रही हैं फैक्ट्रीज़, इनके जो काम करने वाले हैं उनका बेरोज़गार हो रहे हैं। लेकिन वैसे बहुत ही मतलब हमारे लिए इंटरेस्टिंग थी, नॉलेज थी,
और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा बनता होगा जो आज हमने देखा। और मुझे ये भी यकीन है कि अब शायद ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब मशीनरी के ज़रिए से काम हो रहा है। और या तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा फूलों को भी यूज़ नहीं किया जाता होगा, मतलब जब ये नेचुरल चीज़ें केमिकल्स, मुझे लगता है केमिकल्स से खुशबू बना ली गई। वो ये कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि 10,000 पर बॉटल, अगर अच्छे तरीके से खूबसूरत बॉटल में डाला पैकेजिंग वगैरह के बाद जो बता रहे हैं वो कि पैकिंग वगैरह जब हो जाती है तो उसके बाद वो कह रहे हैं 10,000 पर बॉटल। तो मेरे हिसाब से देखें 10,000 वहाँ के बिल्कुल 20,000, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इतनी मेहनत के बाद, और फिर जाहिर सी बात है कॉस्टली पड़ता होगा, क्योंकि आपने देखा फ्लावर्स इतने सारे, फिर वो कह रहे थे ऑयल जो है वो हमें 1000 पर किलो मिलता है। अच्छा, इत्र जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम्स में मतलब ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब एक सुन्नत के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और नमाज जुम्मे के दिन तो ख़ास तौर पे सब लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, वो ऑयल 1 लाख पर किलो, 1 लाख पर किलो, पता नहीं वो सॉरी जो जैतून का तेल या पता नहीं कुछ कह रहा था, हाँ, तो वो इतना महंगा होता है कि उसको उसके अंदर मिलाया जाता है ना, फिर ये ऑयल की शक्ल में होता है। बस है, मैंने गलत बोलते। हाँ, तो फिर वो जो ऑयल बताए थे, ऑयल भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि 1 लाखों से कम तो मिलता नहीं है पर किलो। तो मैं कह रही हूँ कि कॉस्ट फिर सही है, इस हिसाब से तो सही, कॉस्ट तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और चीज़ जो इसके शौकीन होते हैं ना, अच्छा मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, आपको पता है पैसे की कोई कमी अच्छा नहीं, इसका क्रेज़ है लोगों को। हाँ बिल्कुल, इत्र का परफ्यूम्स का है, भले उनके पास है, और अच्छा इत्र और परफ्यूम में क्या फ़र्क है? इत्र लगाकर आप नमाज पढ़ सकते हो क्या, और परफ्यूम लगा के नहीं पढ़ सकते? हाँ, क्यों? अल्कोहल की वजह से। तो होता है इस वजह से जो मुसलमान मस्जिद जाते हैं, नमाज़ तो पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन नहा धो के, जुम्मे का दिन एक मुसलमानों में समझे एक ईद की तरह का दिन होता है। अच्छा, आपको पता है परफ्यूम पाकिस्तान में परफ्यूम थोड़ी सी यानी कि आपको सस्ती मिल जाएगी, चिपेस्ट रेट में मिल जाएगी, इत्र नहीं मिलेगा। लेकिन इत्र एक तो क्वांटिटी वाइज आपको बहुत कम मिलेगा, और ऊपर से वो महंगा भी मिलेगा। और इत्र पूरी बॉटल आपको अच्छा, मिल जाएगी आराम से 500-600 की, बिल्कुल ऐसा ही। बट आपको इतनी सी परफ्यूम मिल रही है ना, इतना सा इत्र मिल रहा है, तो वो आपको नॉर्मल सी बॉटल होगी, और परफ्यूम की खूबसूरत सी बॉटल भी होगी। और परफ्यूम का एक होता है कि परफ्यूम आप स्प्रे करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ होता है, इत्र आप हल्का सा लगा के अपने कपड़ों पर हाथ मल लेते हैं तो वो क्वांटिटी वाइज बहुत कम होता है, बहुत कम ऑयल होता है, ऑयल की तरह का बना हुआ होता है। तो बहरहाल ये है कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को तो नहीं, लेकिन एक बहुत पुराना तरीका इत्र बनने का हमने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग, और इंडिया में अब भी बन रहा है। और लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अभी भी मतलब वेस्टर्न ब्रांड्स को ज़्यादा मतलब बिल्कुल, हाँ, और अब फ्रेंड्स तो मशहूर ही है, यंग जनरेशन तो परफ्यूम पे आ गई है ना, अब तो वो तो पुराने लोग हैं या कुछ ऐसे लोग होंगे जो नमाज़ पढ़ते होंगे या इस तरह का है, तो वो परफ्यूम, हाँ, तो वो मतलब है कि इत्र यूज़ करते हैं। इत्र का इस्तेमाल कम हो गया है मेरे ख्याल में परफ्यूम्स के आने के बाद। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।